वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्विक रेफरेंस की फॉर्मूला एंड कॉन्स्टेंट्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नेट एंड एआरएस एग्जाम ऑफ डिसिप्लिन 56। तो डिसिप्लिन 56 में एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग यूनिट 1 to 5 का हम लोग देखेंगे पहले। सो फर्स्ट यूनिट इज ऑफ आवर हीट एंड मास ट्रांसफर। सो हीट एंड मास ट्रांसफर में सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हमने पूछा जाता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है, दैट इज यू del u is equals to q minus w, where u is the internal energy, q is heat and w is work. Then enthalpy is given by u plus pv, where h is enthalpy, p is pressure and v is volume. Entropy is given by ds is equals to dq by t, where s is denoted for entropy and t is temperature. Then next is our heat capacity, and this is most common formula, that is Q is equals to mCp delta T. That is mc delta T, where C is the specific heat, del T is temperature change, and m is mass. Now work. So work is P into del V. So P is pressure and V is volume. Then del V, that is changing volume. Then efficiency of heat engine is given by the formula neta is equals to W work divided by heat input. It is also given by 1 minus QC upon QH, that is neta is equals to work output and the energy required. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 minus QC upon QH, where QC is cold side heat and QH is hot side heat. Then next subtopic is our moisture and psychrometry. Then in that, water activity is most important term, that is it is calculated as AW is equals to PV upon P0, and the range of water activity is 0 to 1. Then equilibrium relative humidity, it is in percentage and it is given by AW into 100. इसमें ही अगर हमें AW निकालना है तो हम ये वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये 100 यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। AW is equals to ERH upon 100. Then वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये PV है तो हम लोग P0 को अगर ले जाएंगे नेक्स्ट साइड तो PV इज इक्वल्स टू AW इंटू P0, यहाँ पे आ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। Then humidity ratio, W is equals to 0.622 into PV divided by P minus PV. It is in kg of water per kg of dry air. Then drying potential, you may ask कि what is drying potential, तो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि it is the difference between saturated mixing ratio and actual mixing ratio. Then ये values important है हमारे लिए, ये values हमेशा पूछी जाती है। टिपिकल वैल्यूज ऑफ वाटर एक्टिविटी फॉर डिफरेंट फूड, जैसे अभी वेरी स्टेबल फूड है, सेल्फ स्टेबल फूड है, तो उसकी वाटर एक्टिविटी क्या रहेंगी, लेस देन 0.60। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड, जिसको हम लोग IMF भी बोलते हैं, IMF फूड का हमेशा पूछा जाता है, 2-3 बार क्वेश्चन आ गए हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में, उसकी है 0.60 to 0.85। देन अगर किसी की वाटर एक्टिविटी 0.85 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग पेरिशेबल फूड बोलते हैं, उसे रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। So this was all about moisture and psychrometry. Then heat transfer, इसका सब टॉपिक है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में पता है कि हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन का फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T अपॉन डेल एक्स। कन्वेक्शन का फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू HA डेल T। देन रेडिएशन का है सिग्मा इप्सिलॉन A इंटू टी टू द पावर 4, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कंडक्शन जो है वो स्टेडी स्टेट थ्रू सॉलिड, हीट ट्रांसफर जो होता है वो स्टेडी स्टेट मोड में होता है। देन कन्वेक्शन इज जनरली इन फ्लूइड फ्लो ओवर द सरफेस। देन इन हीट एक्सचेंजर LMTD इज इंपॉर्टेंट टर्म, Q इज इक्वल्स टू UA LMTD। LMTD में log mean temperature difference, log mean temperature difference, and U is the overall heat transfer coefficient. So how we will calculate the overall heat transfer coefficient, that is 1 upon U is equals to 1 upon HI plus X upon K plus 1 upon H0. So it is combined conduction and convection. Then next is fluid mechanics. So in that we have continuity equation. So formula for continuity equation is ρ1 v1 a1 is equals to ρ2 v2 a2. But if the fluid is incompressible, then v1 a1 is equals to v2 a2. For now this equation ये energy conservation के लिए यूज होता है। इसका फॉर्मूला है P plus rho हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो है इसका स्ट्रीमलाइन होना चाहिए फ्लो, देयर शुड बी नो फ्रिक्शन। देन प्रेशर ड्रॉप हम लोग निकाल सकते हैं F इंटू एल बाई डी
into rho v square by 2, where f is the friction factor, L is length and d is diameter. Reynolds number we all know, rho v d upon mu. अगर रेनॉल्ड नंबर 2300 से कम है देन फ्लो इज लेमिनर, और अगर 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, और ये दोनों के बीच में रहा तो ट्रांजिशन फ्लो. देन टर्मिनल वेलोसिटी it is given by in root vt is equals to in root twice mg upon rho a cd, where cd is the drag coefficient, और स्फीयर का हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द ड्रैग कोएफिशिएंट ऑफ स्फीयर, तो इट इज 0.47. then next is mass transfer. So in mass transfer the analogy is important, so Sherwood numbers is analogous to Nusselt number in heat transfer. So sh given by kcl upon d, which is analogous to Nusselt number. Then Smith's number, it is given by mu upon rho dab, which is the ratio of momentum to mass diffusion. Then Peclet number is the product of Reynolds number and Smith's number. It is the ratio of advection to convection, sorry, diffusion. Then mass transfer coefficient, where C is the concentration, Kc, that is the mass transfer coefficient, A Ca1 minus Ca2. Then diffusion is given by Fick's law, or it is also asked that mass transfer is given by which law, then it is Fick's law, and heat transfer is given by Fourier's law. Okay, so Fick's law, where dab is the diffusivity, so Na is equals to minus sign is important here, minus dab into a dc upon dx. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Na is equals to minus dab into a dc upon dx. Now you will understand it more easily. Then our next, here we complete the first unit. Then our next unit is form structure. So here for cost economics analysis, BC ratio, P benefit, P cost. अगर BC ratio हमारा benefit cost ratio BCR is greater than 1, then project is viable. Payback period हम लोग निकाल सकते हैं, initial investment divided by annual net benefit, then ROI profit divided by investment into 100, then NPV अगर ज्यादा है 0 से then project is acceptable, अगर IRR हायर है तो प्रोजेक्ट इज बेटर. देन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अगर हमें पीक लोड निकालना चाहिए, नहीं ये जो है वो एमसीक्यूज थ्योरेटिकल नहीं बट न्यूमेरिकल्स में यूज होता है. पीक लोड निकालना है तो समेशन ऑफ पी रेटेड इनटू डिमांड फैक्टर. देन अगर कनेक्टेड लोड निकालना है तो सभी जो भी लोड्स दिए उसका सिर्फ एडिशन करना है. देन एनर्जी कंजम्पशन लोड इनटू ऑपरेटिंग आवर्स. मंथली बिल अगर निकालने को बोला है तो एनर्जी इनटू रेट पर किलोवाट आवर एंड फिक्स चार्जेस. हम भी कुछ जैसे लोड जो है फिक्स होते हैं कि वो इतना ही पावर यूज करेंगे या इतना ही किलोवाट यूज करेंगे. तो सबमर्सिबल पंप है तो वो 0.75 किलोवाट यूज करेगा. देन 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो 2.25 किलोवाट यूज करेंगे. मिल्क कूलर है वो 2 to 3 किलोवाट यूज करेगा. देन कोल्ड स्टोरेज रूम है तो वो 20 to 30 किलोवाट यूज करेगा. Then here comes the next septic tank design, which is important. Then capacity of the septic tank is carried out by the formula population into 135 liter per capita per day. Retention time, that is 2 to 3 days. Then length to width ratio, this is important, 2:1 to 3:1 in ratio. Depth is 1.2 to 1.5 meter. Surface loading is 1000 to 1200 liter per meter square per day. Then detention time is capacity divided by daily flow rate. Then next is storage engineering. Here we are only seeing the key concepts and formulas and constants. Here we are not taking the theoretical part of the topics. It will be covered in next part. So in storage engineering, we have cold storage temperature. Typical value अगर हमें पूछा, देखो दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो टिपिकल वैल्यू पूछते हैं या फिर रेंज पूछते हैं. तो अगर हमें टिपिकल वैल्यू पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है तो 0 to 4 लिखना है. अगर रेंज पूछी है तो -1 to +5. देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेन के लिए 50 to 70% और ये जो है 40 to 80. फॉर प्रोड्यूस मतलब ये प्रोड्यूस मतलब हमारे पेरिशेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स. 85 to 95 टिपिकल वैल्यू है एंड 80 to 98 रेंज है. देन सीएस स्टोरेज में जो ऑक्सीजन की टिपिकल वैल्यू है 2 to 5, ये हमेशा पूछा जाता है. ऑक्सीजन का नियर अबाउट क्वेश्चन आता ही आता है. रेंज जो है वो 1 to 5% है. देन सीएस स्टोरेज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 5 to 15% है. 3 to 20% उसकी रेंज है. देन हर्मेटिक स्टोरेज जो है अनाएरोबिक तो लेस देन 2% होना चाहिए ऑक्सीजन, और रेंज अगर पूछे तो लेस देन 1 to 3%. जनरली हम लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें टिपिकल वैल्यू याद होती है, रेंज याद नहीं होती है. कभी कभी रेंज पूछ जाते हैं और ऑप्शन में रेंज आते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें ऐसा लिखना होता है.
डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जस्ट बी क्लियर इन योर टॉपिक। तो सेल्फ लाइफ प्रेडिक्शन का हमेशा फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछते हैं, उसका मॉडल पूछा जाता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अरेनियस मॉडल यूज होता है सेल्फ लाइफ प्रेडिक्शन के लिए। देन Q10 मेथड है शेल्फ लाइफ का ये फॉर्मूला है, टी शेल्फ इज इक्वल टू टी रेफरेंस इंटू Q10, टी रेफरेंस माइनस टी स्टोरेज डिवाइडेड बाय 10। देन ड्राइंग एंड एरिएशन के पैरामीटर्स, जैसे ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट है, तो ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर हमने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 मिनट का ही है। तो ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट में हमने पूरा डिटेल दिया है कि हाउ वेट बेसिस इज कैलकुलेटेड, बेसिस इज कैलकुलेटेड, रिलेशन बिटवीन देम। So here we have wet basis formula, that is fresh wet minus dry wet divided by fresh wet into 100. Then aeration rate जो है वो 1 टन ग्रेन के लिए कितना होना चाहिए, तो 10 to 50 मीटर क्यूब पर आर है। देखो यहाँ पे आर है, यूनिट्स पे ध्यान दो। एयर वेलोसिटी 0.1 to 0.5 मीटर पर सेकेंड फॉर जनरल एरिएशन। देन ड्राइंग रेट इज 1 to 2% फॉर नेचुरल ड्राइंग। देन सेफ मॉइस्चर कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है हमारा सीरियल्स के लिए 12 to 14%, पल्सेस के लिए 10 to 12% एंड ऑयल सीड के लिए 8 to 9%। So next is our material handling, unit number 4. Here I want to tell you that the material handling का हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो कि सिर्फ 30 मिनट्स का है, हाफ एन आवर का है। उसमें हमने पूरा कवर किया है डिटेल में और हर एक पॉइंट एकदम प्रिसाइजली एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे सिर्फ हमने जनरल थोड़ा सा जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर दिया है, क्योंकि हमें सिलेबस में कुछ डिज़ाइन भी आई है, तो डिज़ाइन के हिसाब से ये फॉर्मुलेज दिए हैं, जैसे कैपेसिटी का है, पावर रिक्वायरमेंट, बेल्ट स्पीड, टेंशन एंड मोटर पावर का है, जो कि उस वीडियो में नहीं है, इसमें इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट इसमें डाला है। ठीक है। देन पैकेजिंग मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इसका हमेशा वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट पूछा जाता है। तो पेपर का जो है वो मोर देन 100 है, ये मॉइस्चर वेपर ट्रांसफर रेट। ऑक्सीजन ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है पेपर में, और ये सिर्फ हम लोग ड्राई प्रोडक्ट्स या सीरियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन LDP जो है उसका मॉइस्चर ट्रांसफर रेशियो है 20 to 50 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। देन ऑक्सीजन ट्रांसमिशन इज मॉडरेट and it is generally used for packaging. Then HDP 5 to 20 low, moderate and moisture protection. Now this comes the very important part of our video, and this question is asked many times, that is which packaging material have least moisture vapor transfer ratio. So here we get confused in these three. So एल्यूमिनियम फॉइल इसका सबसे कम है मॉइस्चर वेपर ट्रांसफर रेट या वाटर वेपर ट्रांसफर रेट हम लोग बोल सकते हैं, एंड ऑक्सीजन ट्रांसमिशन भी निग्लिजिबल है। तो ये जो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज होता है। सो एल्यूमिनियम फॉइल का लेस देन 0.001, ये है WBTR। देन नाइलॉन लैमिनेट 5 to 10, metallized film 0.01 to 0.1, and it is oxygen transmission is very low, but in this there is negligible. So most of the time एल्यूमिनियम फॉइल का क्वेश्चन आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग गलत टिक मार करके आ जाते हैं। नाउ कोल्ड चेन स्टैंडर्ड से कुछ कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होना चाहिए और कितने दिन तक हम लोग वो सस्टेन कर सकते हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी में रख सकते हैं उसे। तो जैसे फ्रेश प्रोड्यूस है तो टेम्परेचर है उसका 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी है 85 to 95%, ड्यूरेशन है 7 to 14 डेज। देन मीट और फिश का अगर हम देखें तो इसका भी टेम्परेचर 0 to 4 ही है, ह्यूमिडिटी में स्लाइट चेंज इज 80 to 90, ड्यूरेशन 3 to 5। डेयरी प्रोडक्ट्स 0 to 4 सेम, ह्यूमिडिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है 50 to 70% और 7 to 21 डेज। फ्रोजन फूड्स का हमेशा पूछा जाता है, इट इज -18 डिग्री सेल्सियस और लोअर, और आइसक्रीम -25 to -18 डिग्री सेल्सियस। सो दिस टू आर टू बी नोटेड। देन यूनिट 5, that is post harvest operation. In this we have first topic, that is membrane separation, which is the most important topic regarding the exam point of view. तो इसमें जो है देखो ये पोर साइज जो है इसका 0.1 to 10 माइक्रोमीटर है। क्या क्या रिटेन करता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, सस्पेंडेड सॉलिड रिटेन करता है, क्लैरिफिकेशन के लिए यूज होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 1 to 100 नैनोमीटर। अब ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, नहीं तो आप बोलोगे ये तो यहाँ पैसा है, यहाँ पैसा है। This is micrometer, this is nanometer, this is also nanometer, this is also nanometer. If we have to do this in micrometer, देखो एक सिंपल टेक्निक मैं बताती हूँ, बहुत इजी है याद रखने के लिए। माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो और रिवर्स ऑस्मोसिस, इससे पहला याद रखना है 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। फिर क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देना 0.01, फिर ये यहाँ पे लिख देना 0.1, ये यूनिट सेम रहेगा माइक्रोमीटर। फिर यहाँ पे फिर से एक जीरो बढ़ा देना 0.001, और यहाँ पे ये यहाँ पे लिख देना 0.01 माइक्रोमीटर। देन ये तो लेस देन 0.001 हो गया। ऐसे याद रखना है माइक्रोमीटर की पोर साइज। ठीक है। अभी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो प्रोटीन, एंजाइम और माइक्रोमोलिक्यूल रिटेन करता है। नैनो फिल्ट्रेशन आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ना, और ये एक इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो है ये किलो डाल्टन में। ओके,
सो 200 to 400 या 500 तक के हम लोग बोल सकते हैं किलो डाल्टन फॉर नैनो फिल्ट्रेशन, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये जूस कॉन्सेंट्रेशन के लिए, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन के लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस डिसलाइनेशन के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिविजुअल आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। अगर नैनोमीटर में आपको ध्यान रखना है तो 1 to 100, देन 0.1 to 1 और लेस देन 0.1 सेम है। देखो यहाँ पे ये 1 to 100 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से याद रखना है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी लेस देन दिस। ओके, सो इन दिस वे you have to memorize. I have told you the short tricks. Then next topic is our thermal processing. उसमें हम लोग पहला पार्ट देख लेंगे पास्चराइजेशन, LTLT। देन ये टेम्परेचर रेंज है हमारी 60 to 65, टाइम है 20 to 30 मिनट्स। देन HTST में 72 to 75 एंड 15 to 20। HTST जनरली पूछा जाता है। स्टरलाइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है, 121 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव टाइम याद रखना है हमें 15 to 30 मिनट्स। और ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑल स्पोर्स। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग 135 to 150, ये टेम्परेचर पूछा जाता है। 1 to 2 सेकंड टाइम हमें सबको जनरली पता होता है, इसलिए जनरली टेम्परेचर पूछा जाता है। कमर्शियल स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। देन ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के कुछ पैरामीटर्स है, वो ध्यान हमें रखना है। जैसे कि सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसका कितना होता है, तो वो 50 to 70 डिग्री तक किया जाता है। टेम्परेचर होता है 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट सोल्यूशन रेशो ये 1.5 to 1:5 to 1:10। डिहाइड्रेशन टाइम 2 to 6 आवर्स। वेट लॉस 30 to 50% ऑफ प्रोडक्ट वेट। और शुगर गेन होता है 5 to 15%। सो इन दिस वे हमने 5 यूनिट्स कवर किए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दी यूनिट 6 to यूनिट 10। हमने एक मॉक टेस्ट भी अरेंज की है, उसका शॉर्ट्स हमने डाला है, आप वो शॉर्ट्स पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हो। हमें सिर्फ ₹1 में रखा है। ₹1 में आपको एक मॉक टेस्ट मिलेंगी विद 150 क्वेश्चंस कवरिंग ऑल द यूनिट्स। सो जरूर ट्राई कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक है और आपके स्टडी में वो यूज हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे ट्यून्ड।